Assalamu alaikum students, I hope you will be fine by the grace of Allah and welcome to all of you in my class. Students, today we will start chapter number 10, drug addiction, and in this chapter we will study about drugs. That in today's society, drug addiction is a common problem. People who want to get rid of their problems become addict of drugs and which cause their physical and mental sickness. So we will start with reading of this chapter, paragraph number 1. Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Long-term use of drug causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. Students, now we will move towards the translation of this paragraph. ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. पूरी दुनिया में मंशियात की लत एक आम मसला है. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशे की लत की कई अकसाम हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट. लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स काजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस. और मुसलसल मंशियात का इस्तेमाल या मंशियात का तवील इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है. सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हीरोइन, marijuana, टोबैको, विलियम, कोकेन एंड अल्कोहल. मंशियात की जो इकसाम जहनी और जिस्मानी उलझाव का सबब बनती हैं, इनमें हीरोइन, भांग, तंबाकू, विलियम, कोकेन और शराब शामिल हैं. Students, now I have to sum up this paragraph, and in this paragraph we are told about some drugs which are very dangerous for physical health, and continuous use of these drugs is very risky for life. Students, you can see that we have a question in the side box. Are the drug addicts aware the danger drugs? क्या इंसान नशा करता है उसको इसके नुकसानात का पता होता है? Yes, the drug addicts aware of the dangers of the drugs. यानी जो इंसान नशा करता है उसको उसके नुकसानात पता भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको वो नहीं छोड़ सकता. Let's move to paragraph number 2. Drug addiction is caused by the environmental factor. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. The people who are satisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. Students, now we will move towards the translation of this paragraph. Drug addiction is caused by the environmental factors. मंशियात की या नशे की लत माहौलियाती अवामिल की वजह से वकूअ पजीर होती है. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. चंद एक अहम माहौलियाती अवामिल जो कि मंशियात की आदत का सबब बनती हैं, इनमें हम उम्र लोग और परेशान कुन घरेलू हालात हैं. डोमेस्टिक बैकग्राउंड, घरेलू हालात. When young people remain in the bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall prey to addiction. जब नौजवान लोग बुरी सोबत इख्तियार करते हैं या जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहेंगे और जुर्रत के नाम पर तजर्बात करेंगे तो वो नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. और जो लोग अपनी जिंदगियों से नाखुश और गैर मुतमईन होते हैं, वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए मंशियात के आदी बन जाते हैं. We have a question in the side box. Which environmental factors are responsible for drug addiction? वो कौन से माहौलियाती अवामिल हैं जो नशे की आदत का या नशे की लत का सबब बनते हैं? Some important environmental factors are domestic background, bad peer problems or psychological issues that can cause drug addiction. Students, now I am going to sum up this paragraph, and in this paragraph we learnt about the people who get addict of drugs due to their family's issues. When young boys remain in bad company, they get addict of drugs, and some people become addict of drugs because they are dissatisfied with their lives or they want to get rid from the responsibilities of life. Now we will move towards the paragraph number 3.
The most important measures to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. Students, now we will see the translation of this paragraph. The most important measures to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. इस सिलसिले में सबसे अहम कदम जो उठाने की जरूरत है वो नशे के आदी लोगों की आबादकारी और इन्हें सेहतमंद बनाना है. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problems with others. पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में नशे के आदी लोग और इनके खानदान वाले, इनके दोस्त, इन लोगों के मसाइल के बारे में दूसरे लोगों से बात करना मायूब समझते हैं. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. वो इस खौफ से कि इन्हें अपनी जात से बाहर ना कर दिया जाए. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. ये बात ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देती है, बल्कि बहुत से मौकों पर आदी लोग बरवक्त इलाज और सलाह मशवरा ना मिलने की वजह से जान गंवा बैठते हैं. Students, the theme of this paragraph is that the most important measures is that we should contact to rehabilitation centers, but some family do not talk about it for the fear of being declared, which results the disaster of life only. Students, we will see paragraph number 4. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. However, this requires rapid identification of the problems of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. Students, now we will see the translation of this paragraph. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली के मराकज़ काबू पाने और सेहतयाबी के लिए बेहतरीन मकामात हैं. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिबी मदद और रहनुमाई फराहम की जाती है. ड्रग अब्यूसर्स मतलब नशे के आदी लोग. Drug abusers therefore must be taken to proper certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. ये मराकज़ इनकी देखभाल करने के अलावा और क्या करते हैं कि मंशियात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुनासिब बहाली के मराकज़ पर ले जाया जाता है, जहां इनके लिए मुकम्मल इलाज और बेहतरी के मौके मैसर होते हैं. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसमें नशे की लत के मसले की तेजी से शिनाख्त और इनकी टीम के साथ मुतासरीन की टीम का मुकम्मल ताउन शामिल है. Students, you can see we have a question in the side box. What treatment is available at the rehabilitation centers for drug victims? इन मराकज़ में किस किस्म की मदद दी जाती है लोगों को या जो विक्टिम्स होते हैं उनको. Rehabilitation centers strictly supervise the victims. Complete medical support and guidance is provided to these people in these center. उन लोगों की मुकम्मल देखभाल की जाती है अपनी सुपरविजन में और मुकम्मल तिबी मदद फराहम की जाती है. Students, we will see the theme of this paragraph. For counseling of the addicts, rehabilitation centers are best places because complete medical help are given to the addicts, and we should cooperate with the team of these centers so that they can be given proper treatment. Students, next we have paragraph number 5. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. We will see the translation of this paragraph. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. Counseling means
मशवरा, मुतासरीन की बहाली में दूसरे मुशावराती अनासिर मुनासिब किरदार अदा करते हैं। द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज फॉर द विक्टिम, जितना जल्दी ये काम कर लिया जाए मुतासरा शख्स के लिए उतना ही बेहतर है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूसर इज रिहेबिलिटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ रिलैप्स। रिहेबिलिटेड मतलब सेहतमंद हो जाना। और मुशावरत का अमल मुतासरा अफराद की बहाली के बाद भी जारी रहना चाहिए ताकि खतरात दोबारा ना पैदा हो सकें। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। मुतासरा की या मुतासरा शख्स की बेहतर तरगीब के लिए इसके डॉक्टर, खानदान और दोस्तों को इसकी मुसलसल सख्त निगरानी और मुशावरत करनी चाहिए। Students, the theme of this paragraph is that we should contact the rehabilitation centers and for the rehabilitation of the drug addicts, it is very necessary that they should given proper counseling, and it is very good for the addicts to counsel the doctor or rehabilitation centers as soon as possible. We have a question. What do you understand by the term counseling? Counseling से आप क्या समझते हैं या इससे क्या मुराद है? Counseling is a professional advice about a problem. किसी भी मसले के बारे में ये एक पेशावराना नसीहत है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू पीपल मीट टू एक्सप्लोर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, यानी दो टीम, दो किस्म के लोग जो हैं वो मिलकर किसी भी मसले का हल निकालते हैं। स्टूडेंट्स, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 6, ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 million ड्रग एडिक्ट्स. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from the society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. Students, see the translation of this paragraph. ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। मंशियात की लत वाकई किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही संगीन खतरा है। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 million ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन मंशियात के आदी अफराद हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशे के आदी अफराद को माशी, समाजी और सेहत के बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है। The government all over the world have been trying to eliminate mean to remove or to remove completely, wipe out completely, खत्म करना, निकाल देना drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. दुनिया भर की हुकूमतें माशरे से मंशियात को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें करना बाकी हैं। This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि लोग मंशियात से लाहक खतरों से तेजी से वाकफियत हासिल कर लें। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. और एक सेहतमंद और बामानी जिंदगी गुजारने का वादा कर लें, या वो मीन कसम खाना या वादा कर लेना। Students, I have to sum up this paragraph. Drug addiction is really a serious problem all over the world. And in today's society, addicts face many health problems, and government all over the world is trying to remove these issues. But much efforts are needed till yet. Students, this was all about this lesson. I hope you got many points about drugs and you got awareness about the negative effects of drugs. Students, now it's turn of glossary. एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट परफेक्ट, इन्फ्लुएंस, हैव इफेक्ट अपॉन किसी चीज पे भी असर हो सकता है, इन्फ्लुएंस, टैबू मायूब समझना, फॉरबिडन, क्यूरेटिव हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है कोई चीज भरना, जख्म का भरना भी हो सकता है, या सेहतयाब होना, रिहेबिलिटेशन रिकवरी सेहतयाबी, रिलैप्स गो बैक टू हेल्थ और गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन यानी अपनी रूटीन की तरफ या सेहत की तरफ वापस जाना, सेहतमंद हो जाना। स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. It also refers to the importance of the rehabilitation centers in treating drug addicts.
It highlights the vital role that counseling plays in making people live a healthy life. Students, after completing the explanation of this chapter, now we will have to move towards the unit related question answers. And first of all, we have question number 1. Are the drug addicts aware of the dangers of drug? क्या जो नशा करते हैं लोग या जो नशे के आदी लोग हैं वो इसके नुकसानात के बारे में इल्म रखते हैं? Yes, drug addicts are aware of the mental and physical anguish caused by drugs. यानी जो लोग नशा करते हैं उनको इसके जिस्मानी असरात का और जो उनके दिमाग पे असर होता है इस बारे में वो कंप्लीट अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको छोड़ नहीं सकते. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन? कौन से माहौलियाती अवामिल हैं जो नशे की आदत का सबब बनते हैं या नशे की लत का सबब बनते हैं? Environmental factors such as home condition, psychological issues of the person and social circle in which the person lives. कुछ माहौलियाती अवामिल जो है वो अफराद पे असर करते हैं. कौन कौन से? जैसे फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली कंडीशंस हैं, डोमेस्टिक कंडीशन आप उसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ अ पर्सन है, कुछ नफ्सियाती मसला होता है इंसान का. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा हासिल करने के लिए इंसान जो है वो नशे की तरफ फिर रुजू करता है. The next we have question number 3. What treatment is available at rehabilitation centers for drug victims? बहाली सेहत के मराकज में किस किस्म का इलाज दिया जाता है मरीजों को? रिहेबिलिटेशन सेंटर स्ट्रिक्टली सुपरवाइज द विक्टिम्स. सबसे पहले क्या करते हैं वो सख्ती से उनकी निगरानी करते हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स. और उन लोगों को इन मराकज में मुकम्मल तौर पर जो है वो रहनुमाई की जाती है और मुकम्मल तौर पर अपनी निगरानी में इलाज किया जाता है. यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं या काउंसलिंग से क्या मुराद है? काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम. काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू पीपल मीट टू एक्सप्लोर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस. काउंसलिंग एक जो है पेशावराना नसीहत है, किसी भी मसले पे वो हो सकती है. और काउंसलिंग कैसे होती है कि इसका ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं, दो टीम्स आपस में मिलती हैं, तो किसी भी जाती मसले का या किसी भी मसले का हल निकालने के लिए वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं. स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स विच इज इन योर टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? नशे की लत के जो है वो असरात क्या हैं? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग काजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस. सबसे पहले इसका क्या नुकसान है हमारा कि जो है वो जिस्मानी बीमारी का या दिमागी बीमारी का या असाबी दबाव का हम शिकार होते हैं. द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज यूज द मोर रिस्की इट बिकम्स. और जितना ही खतरनाक मादा इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ये खतरनाक होता है. इट कॉन्टिन्यूस यूज कॉजेज टोटल डिपेंडेंस ऑन इट. और इसका जो मुसलसल इस्तेमाल है वो इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है. यानी जिस आदमी को नशे की आदत हो जाती है तो जब उसको कोई छोटी सी भी टेंशन होती है या परेशानी होती है या किसी भी वो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो फिर वो नशे का सहारा लेता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन? नशे की लत की वजूहात क्या हैं? ड्रग एडिक्शन आर काज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. यानी इसके दो पहलू हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी माहौलियाती असर है. जेनेटिक फैक्टर्स एक्सप्लेन दैट देयर आर मेटाबॉलिक एंड न्यूरॉन केमिकल malfunction in the brain that causes a person to become addict. इंसान के कुछ असाब में ऐसे मादे होते हैं कि जो उसको अगर थोड़ा सा अगर सपोज के स्टार्ट में वो कम नशा करता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके जो असाब हैं उसका जो दिमाग है वो उसको उस तरफ रागिब करना शुरू कर देता है और वो इंसान उस नशे का आदी हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो कौन कौन से माहौलियाती अवामिल हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज होम कंडीशंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ द पर्सन एंड द सोशल सर्कल इन विच पर्सन लिव्स. माहौलियाती अवामिल में क्या क्या चीज आती है कि एक तो डोमेस्टिक कंडीशन जो है इंसान की, उसका फैमिली स्टेटस जो है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो नशा करने लग जाते हैं. साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ द पर्सन, कुछ इंसान की नफ्सियाती बीमारी है. एंड द सोशल सर्कल इन विच पर्सन लिव्स, और कुछ जो है वो
वो अवामिल भी या समाजी एक जो दायरा है जिसमें वो रहता है वो अवामिल भी उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जिससे वो नशे की तरफ रुजू करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन? नशे की आदत पर काबू पाने के लिए बहाली सेहत के मराकज कितना अहम किरदार अदा करते हैं? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत पर काबू पाने के लिए बहाली सेहत के जो मराकज हैं बहुत अहम और तामीरी किरदार अदा करते हैं। These centers strictly supervise the victims। सबसे पहले क्या है कि जो नशे का आदी शख्स होता है उसकी निगरानी की जाती है बहुत सख्ती से। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। और इन लोगों को इन मराकिज में मुकम्मल तिबी मदद और रहनुमाई फराम की जाती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन? नशे की आदत को रोकने के लिए काउंसलिंग का क्या किरदार है? The factors that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling। ये काउंसलिंग जो है ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है, ये एक मुशावराती अमल है या मुशावराती प्रोसेस इसको हम कहते हैं। The sooner it is done, the better it is for victim। और काउंसलिंग इंसान के लिए उतनी ही बेहतरीन है जितना जल्दी मतलब किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से हम काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated। और ये मुशावराती अमल जो है या काउंसलिंग का जो अमल है वो उसके बाद भी जारी रहना चाहिए जब नशे का आदी फर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, यानी वक्तन फवक्तन उसको फिर भी जरूरत पड़ती रहती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स? जो नशे के आदी अफराद होते हैं उनके खानदान वाले या उनके दोस्त इस बारे में क्यों हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि वो उन्हें किसी भी मरकज में या किसी भी बहाली सेहत के मरकज में लेके जाएं? फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। वो इस वजह से हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि वो एक खानदान में सोसाइटी में डिक्लेयर हो जाएंगे और फिर लोग उनको बुरा भला कहेंगे।